میرے گھر دعاؤں کا انبار لگا ہے، میرے گھر دعاؤں کا انبار لگا ہے، میری تقدیر تو سلامت ہے، کلکاریاں بچوں کی سکون دیتی ہے، نہ چوڑیوں کی کھنک، تھکا ہوا ہوں بہت مجھ کو سلا دے ماں، پھر وہی گیت وہی بول سنا دے ماں۔ مجھے آپ کا پورا تعارف بتائیے سر۔ میرا نام فضل احمد ہے، میں تیماپور ایک چھوٹے سے قصبے سے تعلق رکھتا ہوں جو بحیثیت مسلمان کے تیماپور یہ کوئی مذہبی یا اردو والا نام نہیں، یہ تیموا سے تیماپور بنا ہے۔ اکثر مسلمان لوگ جو ادب سے تعلق رکھتے ہیں وہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ تیماپور اپنے گاؤں کا نام بتائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تیماپور ایک ادبی گہوارہ ہے، کم از کم ہر گھر میں ایک گریجویٹ ملے گا آپ کو، تعلیم یافتہ اور سمجھدار۔ تیماپور سے ایک چپراسی سے لے کر سپریم کورٹ کے جو ہے جج تک بنے ہیں، وکیل تک بنے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے یہاں کے اساتذہ کی دعاؤں کا طفیل ہے کہ پڑھنے لکھنے، دینی، مذہبی، سماجی، تیماپور سے نسبت سارے جہاں پر بھی ادب پڑھنے لکھنے والے ہیں تیماپور شہر کو نام سے واقف ہیں، یہ گاؤں کو دیکھے ہوئے نہیں۔ اس کی وجہ یہ بتانا، خاص بات یہ ہے کہ وہاں پر ایک پربھو راؤ صاحب ٹیچر ہوا کرتے تھے، وہ کسی پھر دوسرے تعلقے سے تیماپور ٹرانسفر ہو کے جب آئے تو اردو کلاس میں بچوں سے تعارف کروا رہے تھے کہ بتاؤ بیٹے تمہارا نام کیا ہے، تو لازماً اردو کے اسکول میں کلاس میں مسلمان بچے تھے، فلاں فلاں صاحب نے اپنا نام بتایا۔ ایک صاحب کا نام تھا، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام سر محمد یاسین ہے۔ او محمد یاسین، چلو کوئی بچہ سورہ یاسین سنا سکتا ہے کیا، جو قرآن کا دل ہے؟ تو کسی نے نہیں سنایا، تو پربھو راؤ صاحب نے خود وہ صورت، اتنی طویل صورت ہے سورہ یاسین، وہ سنائی اور کہا کہ اس کی تفسیر کل سناؤں گا میں۔ ایسے اساتذہ گزرے ہیں جو انہی کی طفیل ہمارے بھی استاد گزرے ہیں، مگر کارنامے اساتذہ اپنے حقوق ادا کرے ہیں، اپنے علم اپنے شاگردوں کو منتقل کیے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے بھی شاید تیماپور مشہور ہے۔ مثال کے طور پر گلبرگہ میں تیماپوری چوک بھی ہے، جو ایک قصبہ ہے گلبرگہ ضلع کا تھا، اور امریکہ میں بھی تیماپوری کے نام سے بھی ایک کوئی رہا ہے۔ یہ بھی ایک کارنامہ ہے، حالات سے چھوٹا سا شہر ہے، اس سے تعارف ہے۔ میں تیماپور 35 سال پہلے گلبرگہ منتقل ہوا، چھوڑ کر بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری کو بڑی انماس سے ایک بحیثیت باپ کے اپنے فرائض ادا کیا ہوں۔ یہ چھوٹا سا میرا تعارف ہے تیماپور اور فضل احمد تیماپوری کی نسبت سے۔ میرا ایک سوال یہ ہے، آپ گلبرگہ شفٹ ہو گئے تو مجھے ذرا گلبرگہ کی بھی ذرا تاریخ۔ گلبرگہ ایک تاریخی شہر بیرونی سلاطین کا گہوارہ رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے میں بڑے اختصار سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، صرف اختصار۔ عادل شاہی، بری شاہی، قطب شاہی، احمد شاہی دور، یہ بعد میں جو ہے توسیع ہو گئی۔ علم کا گہوارہ ہے، یہاں کوئی انڈسٹریز یا کوئی کاروباری مرکز نہیں ہے۔ یہاں پر 4 یا 5 یونیورسٹیز ہیں، 3-4 جو ہے میڈیکل کالجز ہیں، اور کئی انجینئرنگ کالج ہیں۔ دلی، یو پی، بہار اور دیگر صوبوں سے بھی یہاں طلباء تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں، اور یہاں کا تعلیمی معیار بہت اچھا ہے۔ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی بھائی بھائی کی طرح رہتے ہیں، یہاں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے۔ اللہ کرے یہ محبتیں یہ ہمیشہ برقرار رہیں، ایک مثالی شہر ہو، اور سارے ہندوستان کے دیگر صوبوں میں بھی اس کی جو ہے کارستانیاں کی چرچے ہوں، اور لوگ بھائی بھائی کی طرح رہے۔ آج پرآشوب دور میں بڑے مشکلوں سے خوف کی زندگی گزار رہے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، مگر جس طرح پچھلے دور میں
एक भाई भाई की तरह रहा करते थे, इसी तरह भी रहे। गुलबर्गा बहुत बड़ा मरकज़ है जहाँ पर हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह का जो है मरकज़ है, और एक शरण बसप्पा अप्पा का भी मंदिर है, जो दोनों एक और जो है वो संत भाई भाई की तरह रहते हैं। गुलबर्गे की बहुत सारे वाक़यात हैं, अगर इसको गुफ्तगू करते जाएं तो बहुत तफसील से बहुत तवील गुफ्तगू होगी। ऐसा सुना है यहाँ गर्ल्स कॉलेज भी है, उसका ज़रा नाम बताइए कॉलेज का, और उसके बारे में कुछ कहिए। हाँ साहब, बीबी रज़ा डिग्री कॉलेज, बीबी रज़ा हाई स्कूल, जो सिर्फ ख़वातीन के लिए है, लड़कियों के लिए। यह गुलबर्गे में उमेश गर्ल कॉलेज गवर्नमेंट का हुआ करता था। हज़रत सज्जादा नशीन मोहम्मद रसूली 55 साल पहले ख्याल आया कि भाई हमारी बच्चियाँ भी बुरक़े में, नक़ाब में, हमारे समाजी मुआशरे के हिसाब से यहाँ ये ज़रूरत महसूस किया उन्होंने, तो उसकी तालमेल डाली। बीबी रज़ा डिग्री कॉलेज, बीबी रज़ा पीयू कॉलेज, बीबी रज़ा हाई स्कूल, ख़वातीन के लिए मखसूस एक स्कूल चला रहे इदारा है। KBN कॉलेज, KBN इंजीनियरिंग कॉलेज, KBN यूनिवर्सिटी भी अक़लियतें उनके नाम पर जो है ये गुलबर्गे में चलती है। ये एक बहुत बड़ा कारनामा है हज़रत ख्वाजा मोहम्मद हुसैन सज्जादा रशीद मरहूम का, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आज शान है मुसलमानों की या उर्दू ज़बान की या हमारी तहज़ीब की, तो ख्वाजा हज़रत मोहम्मद हुसैन सज्जादा रशीद मरहूम की बहुत बड़ी ताउन और उनकी दूरअंदेशी का नतीजा है कि आज गुलबर्गा में ख्वाजा बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह के नाम से यूनिवर्सिटी भी है। का कुछ सफ़र बताइए, आपकी मसरूफियत क्या रही और उस स्कूल का पीरियड कैसा था, उस पीरियड के वस्तादों का भी जिक्र कीजिए। पहले तो मैं आप लोगों का जो गुलबर्गा तशरीफ़ लाए, नूरुद्दीन जवाद साहब, डॉक्टर कलीम जिया साहब, मेरे अज़ीज़ तरीन दोस्त भाई मीर साहब, हसन साहब, मुदीर तिरियाख, जो गुलबर्गा तशरीफ़ लाए, आपसे मुलाकात का शर्फ़ हासिल हुआ। मैं आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी खिदमत को कबूल फरमाए। हर शख्स की एक ज़िंदगी होती है, किसी के कारनामे होते हैं, कोई सरसरी ज़िंदगी गुजार के इस दुनिया से चले जाता है। हमने भी कुछ ऐसे कोई कारनामे अंजाम नहीं दिए। हाँ, हमें अदब से दिलचस्पी है, उर्दू पढ़ना लिखने का शौक़ है, और किसी अच्छे राइटर्स या शायर, अदीब, फिक्शन निगार जो भी रहते हैं उनसे सुनने और उनसे इस्तेफ़ादा हासिल करने का ये भी एक शौक़ है। हालांकि साहिब औलाद हर शख्स होता है, किसी की तरबियत किस अंदाज से होती है, किसी के अंदाज से तरबियत होती है। अलबत्ता मैं छोटी सी मुलाज़मत में अपने बच्चों को तालीम के सिलसिले में बहुत ही एक अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की मदद के ज़रिए, एक लड़का मेरा MTech इंजीनियर स्ट्रक्चर है, एक बच्चा मेरा MD डॉक्टर पीडियाट्रिक है, एक बच्चा मेरा MBA है, मार्केटिंग ऑफिसर है, एक लड़की MSc B.Ed है, एक लड़की मेरी BA B.Ed है। मैंने हमेशा तालीम पर तवज्जो दी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट हैं। मैं कम तालीम याफ्ता तो हूँ, मगर मैंने बदला नहीं लिया अपने औलाद से। मैं उनको जो है हमेशा, दौलत तो आती जाती है, इल्म की दौलत से अल्लाह ताला सरफराज फरमाया, उसका लाखों करोड़ों शुक्र एहसान मानता हूँ। ये मेरी मेहनत है। अल्लाह ताला फरमाता है जो खुद अपनी मदद करता है मैं उसकी मदद करता हूँ। बस इसी बात को मैं बेस बनाकर बच्चों को तालीम की तरफ तवज्जो। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे सारे बच्चे बरसरकार हैं। बस अल्लाह का ही शुक्र अदा करता हूँ। आप जैसे दोस्तों की मोहब्बतों का ममनून मशहूर हूँ जो मुझे इस काबिल समझ कर लबकुशाई का मौका दिया। जज़ाकल्लाह जज़ाक। जी, हमें आप मालूम हो आप शायरी भी करते हैं, तो हम भी अज़राए करम आपसे कलाम सुनना चाहते हैं। ये बात तो सच है। अदब से दिलचस्पी का नतीजा ये है
मैं शायरी आज़ाद नज़्में कहता हूँ, ये मेरा अपना ज़ौक़ है। मैं मौज़ूआ की बात करता हूँ, अल्फाज की बंदिश से बात नहीं करता। ये मेरी अपनी मर्ज़ी है, मेरा अपना शौक़ है। शायर तो ख़ुद को मैं समझता नहीं, अलबत्ता एक दो नज़में आपके गोशो गुज़ार करूँगा। सिर्फ मेरी मौज़ूआत पर तवज्जो दीजिए आप। इरशाद है। मुलाज़ा फरमाइए। एक नज़्म। मेरे घर दुआओं का अंबार लगा है, मेरे घर दुआओं का अंबार लगा है, मेरी तकदीर तू सलामत है। किलकारियाँ बच्चों की सुकून देती है, न चूड़ियों की खनक। थका हुआ हो बहुत, मुझको सुला दे माँ, फिर वही गीत वही बोल सुना दे माँ। वाह इरशाद। तवज्जो दीजिए डॉक्टर साहब। दिल दीमक की तरह वजूद को चाट रहा है, दिल दीमक की दिल तरह। दीमक की तरह वजूद को चाट रहा है। दिमाग वसवसे लिए कौवे की तरह चोंच पर चोंच मार रहा है। वाह वाह बहुत खूब। उम्र वक्त की चाबुक लिए मौत की जानिब हाँक रही है। ज़मीर एहसास ये दिलाता है, एक लाइफलाइन बच गई है तौबा की सूरत में। वाह बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। नज़म सुनाइए सर। मेरी हमेशा नज़में जब भी ख्याल तख़य्युल मेरे ज़हन में आता है तो मैं मौज़ूआत को छेड़ता हूँ। मैंने आज के दौर में और हज़ारों साल पहले के दौर से तक़ाबुल करने से ये साबित किया हूँ कि पहले के लोग फॉरवर्ड थे, आज हम बैकवर्ड हैं। इसको अपनी नज़र में मैंने कहने की कोशिश की। जी, कहाँ जी। तक मैं कामयाब हूँ आप ही फैसला फरमाएं। जी जी इरशाद है, कहिए। मैं भी खुश था, मैं भी खुश था, वाह तुम भी खुश थे, सारे खुश थे। ये तब की बात है जब ये दीवार छत और दरवाजे न थे। वाह बस एक छोटी सी मुख्तसर नज़म लिखता आज़ाद नज़में, इसमें आहंग बहर या कुछ है, ये मैं उस पर तवज्जो नहीं देता कि भाई शायर या तख्लीक कर कहना क्या चाहता है। असल बात वो कहने की मैं जी कोशिश हाँ, करता हूँ। लोग जी। कहाँ तक मुत्तफ़िक़ हैं वो अपना उनकी अपनी मर्ज़ी है। बहुत खूब है। मुआशरा आज इस पुरअशुभ दौर से गुज़र रहा है। यहाँ से दिलों से मोहब्बतें ख़त्म हुई, नफ़रतों को पनपने या नफ़रतों को दिमाग में जहर की तरह चुभोता जा रहा है। हम इंसानियत को भूल गए हैं, मुफाद परस्ती में दाखिल हुए हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि तरबियत अपने औलाद को कीजिए। हम जिस ढंग से भी ज़िंदगी गुजार के चले जाएंगे, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए एक पैगाम भी है कि माँ बाप के हुक्म माने, असातिज़ा की कदर कीजिए, मुताले का शौक़ कीजिए। अपनी जो है मज़हबी किताबों की, जो भी अपने मज़हब पे कारबंद है, उन किताबों का मुताला करने की कोशिश कीजिए। शायद उसमें रहनुमाई यकीनन मिल जाएगी। हम अपने बच्चों से खौफज़दा इसलिए हैं कि खौफ की ज़िंदगी हमने बहुत जी ली है। हमारे बच्चे, हम चाहते हैं कि वो खौफ की ज़िंदगी से मुस्तस्ना रहें। बस इतना सी पैगाम है, इंसानियत को आम किया जाए। इंसानी सबसे बड़ी दौलत है, हम इससे महरूम हो रहे, चाहे हमारे घर से हो, मोहल्ले से, शहर से या मुल्क की हैसियत से। हर मुल्क में भी यही हालत है। लोग मादा परस्ती की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, हालांकि ज़िंदगी जीने के लिए ये ज़रूरी नहीं है, मगर फिर भी हम इतने दुनिया से मुलविस भी हैं। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि दुनिया की हैसियत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है, मगर हम इस पर तवज्जो दे रहे नहीं। ये हमारी कोताहियाँ हैं, हम इस पर भी गौर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लफ्ज़शाही का मौका दिया। जज़ाकल्लाह खैर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती वक्त दिया। शुक्रिया जी सलाम। फजल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। समय इंडिया न्यूज़ चैनल की तरफ से आप सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। खबर जो हटकर हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले आपको न्यूज़ नोटिफिकेशन मिलते रहे। जय हिंद।